قادیان دارُ الامان جہاں ان جلسوں کا آغاز ہوا، اور دیکھیں ہماری سواریاں کیسی ہوا کرتی تھیں۔ آج ہم مرسیڈیز اور پورشے پہ جاتے ہیں۔ سنیں ذرا قادیان کا سفر۔ تھے سوئے قادیاں روا، ہر ایک طفل و مرد و زن، کشا کشا جوا جوا، قدم قدم تھے ذوفشاں، مسیح وقت کے نشاں، بڑھے چلو یہ کہہ رہی تھی دھڑکنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج 21 اگست 2023 اور ٹھیک آج سے 10ویں دن ہم جلسہ سالانہ جرمنی 2023 کے بابرکت نظاروں سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ یہ جلسہ جرمنی میں جماعت احمدیہ کو قائم ہوئے 100 سال کے موقع پہ ہونے جا رہا ہے۔ اس کی اہمیت کی وجہ سے یہ جلسہ جو ہے ایک ایسے مقام پہ ہونے جا رہا ہے جہاں جتنا وہ بڑا مقام ہے، جتنے بڑے وہ حال ہیں، اتنا بڑا جلسہ آج تک دنیا کی تاریخ میں، جماعت احمدیہ کی تاریخ میں کہہ لیتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں کسی بھی جگہ پہ جگہ کے لحاظ سے جو ماڈرنائز طریقے سے چھتی ہوئی ہو نہیں ہوا ہوگا۔ آپ نے یو کے کا جلسہ دیکھا، وہاں جو حال تھے بڑے، ان حالوں سے یہ وہ 7000 غالباً کوارٹر، یہ 20,000 کوادرٹ میٹر، یعنی اس سے ڈبل سے بھی زیادہ بڑے ہیں یہ حال۔ اور 8 حال ہیں جو باقاعدہ آج کی جو ماڈرن ترین، جس کو کہہ سکتے ہیں ٹیکنیک کے مطابق جو بنائے گئے حال ہیں، جہاں بڑی بڑی مشہور کانوکیشنز جو ہوا کرتی ہیں، وہ والے حال ہیں۔ اور اس موقع پہ امید کی جا رہی ہے کہ 50,000 سے زائد جو مہمان ہیں وہ 3 دنوں میں اس جلسہ پہ شامل ہوں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جلسے کی تاریخ جو ہے، جلسہ جو ہے یہ قادیان سے شروع ہوا، اور اس وقت اگر ہم غور کریں تو جلسہ پہ جو لوگ، جو مہمان مختلف علاقوں سے آتے تھے، وہ جب اسٹیشن پہ پہنچتے تھے تو وہاں سے ٹانگے کے ذریعے، یعنی ٹانگا اور پیدل، یہ 2 طریقے سے جس سے وہ چل کے قادیان پہنچتے تھے ان روحانی لمحات کو جذب کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد یہ جلسہ پاکستان موو ہو گیا، اور ربوہ کے جلسے جو ہیں ان کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، کس طرح پورے پاکستان سے بسیں آ کے لگا کرتی تھی، ہماری ڈیوٹیاں ہوتی تھی ربوہ والوں کی، کوئی مہمان نوازی مردانہ، کوئی مہمان نوازی مستورات، نظم و ضبط، خدمت خلق، لنگر خانہ، اتنے وہ شعبے تھے جو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے ہوئے ہیں۔ اور لوگ کتنے جذبے کے ساتھ، کتنے اخلاص کے ساتھ جب تقاریر ہوتی تھی تو وہ بیٹھ کے سنا کرتے تھے جلسہ گاہ میں۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ سپیکرز کے ذریعے مختلف ڈیوٹیوں والوں تک بھی آواز پہنچتی تھی۔ وہ وقت تھا جب لوگ ٹانگوں پہ، ریڑوں پہ، بسوں پہ، ٹرالیوں پہ، ٹرینوں پہ، ایون کہ سائیکلوں پہ پورے پاکستان سے لوگ گروپوں کی شکل میں جلسہ میں شامل ہوا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ برکات جن کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ وہ بھی پالیں۔ لیکن اب وقت پہنچ گیا یورپ میں۔ ہم جو یہاں یورپ میں یا ان ترقی یافتہ ممالک میں آ کے آباد ہو گئے ہیں، جیسے جیسے مال کی فراوانی ہوتی چلی گئی ہے، ہمارے پاس اب وہ ریڈی، ٹریکٹر، ٹرالی یا وہ ٹانگا، وہ والی تو اب صورت رہی نہیں ہے۔ اب ہم لوگ آتے ہیں مرسیڈیز پہ، پورشے پہ، فوکس ویگن پہ، آؤڈی پہ، یا یہ BMW پہ، جو ایون کے لوگ فراری پہ، اور طرح طرح کی سواریاں جو ماڈرن ترین ہیں
उन पे पहुंचते हैं। और अब इस जलसे पे लोग डायरेक्ट हवाई जहाज के जरिए स्टुटगार्ट एयरपोर्ट पे उतरेंगे और वहां 10 मिनट पैदल जगह पे वो जलसागाह में पहुंचेंगे। ये तरक्की का जो अंदाजा वो आप लगा लें। अब बात जो जरूरी है वो ये है कि जलसा सालाना तो हर साल होता है और हर मुल्क में होता है, और लोगों को ये पता भी है कि इसकी बरकत क्या है, हम किस मकसद के लिए ये जलसा होता है। लेकिन एक चीज जो आप सब ने महसूस की होगी वो ये है कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे माल आ गया है, तरक्की आ गई है, वो जो अखलास है, जिस अखलास के तहत हमारे बुजुर्ग बैठ के तकारीर सुना करते थे, प्रोग्राम सुना करते थे, सुबह तहज्जुद की नमाज में शामिल होते थे, वो वाला अब नजर नहीं आता। वो एक जमाना था जब हमारे जो बुजुर्ग होते थे उस जमाने में, उनको जब कोई लोग दुआ के लिए कहते थे तो वो दुआ करके बता देते कि हाँ भी अल्लाह ताला ने दुआ सुन ली है। ऐसे वाकयात हैं कि अगर इंसान सुने तो दंग रह जाता है, बल्कि जलसों पे ये तकारीर में शामिल होते हैं। हमारा यहाँ जर्मनी का जो जलसा होने जा रहा है, आपने शुरू में वीडियो में देखा कि किस तरह कादियान में या पाकिस्तान में लोग शामिल होते थे, टांगे पे बैठ के पहुंचते थे, कितनी खुशी महसूस करते थे। और वो जो काम स्ट्रगल करके ज्यादा मुशक्कत करके किया जाता है उसका जो फल मिलता है उसका मजा भी उतना ही ज्यादा आता है। जो काम ज्यादा मुशक्कत करके नहीं किया जाता उसका फल भी उतना मजेदार नहीं होता। अब आप देखें, लोग जाके होटलों में ठहरते हैं, हर जलसा यूरोप का ले लें, आराम से लुक्सुस होटलों में ठहरे, सुबह दिल जिस वक्त किया उठे, नहाए धोए, निशान लगाए तकरीरों पे कि फलां तकरीर जो है ना उस वक्त तक तो हम पहुंच जाएंगे। ये तकरीर जो मौलाना की ये सुनने वाली होती है इसमें बड़ा मजा आता है, या हजूर अक़दस का खिताब है इतने बजे, वो तो हम इंशाअल्लाह ताला इतने बजे भी निकलें तो पहुंच जाएंगे। बात यह है कि ये जलसे की रूह है ही नहीं। हम माल के साथ हमने जलसे की रूह जो है वो खत्म कर ली है। बहुत सारे लोग हैं, हम में से सारे नहीं, जो जलसे को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं है तो ये कड़वा सच। लेकिन ये है कि एक जनरल मेरा वीलॉग जो होता है अमूमन यही होता है कि जो हकायक हैं उनको बयान किया जाए, और जिनके ऊपर वो फिट बैठते हैं वो समझ जाते हैं, और जिन पे बैठते नहीं है फिट वो कहते हैं कि हाँ ऐसा भी होता है। अब बात इतनी है कि जलसे पे हम पूरा साल इंतजार करते हैं कि अब हमारा जलसा आना है, हमने वहां जलसे पे पहुंचना है, और बच्चे अपने पाकिस्तान से कपड़े बनवा रहे हैं, औरतें कपड़े बनवा रही हैं, बंदे जो हैं सूट सिलवा रहे हैं, तरह तरह के नई जूतियां, नई गाड़ी खरीदनी है, जलसे पे जाना है या किराए पे लेनी है। जो असल मकसद है जलसे का, कितने लोग हैं जो असल मकसद के तहत जलसे में शामिल होते हैं कि जलसे के अंदर हम शामिल होंगे, हम अपनी जिंदगी का जायजा लेंगे, हमारे अंदर कौन कौन सी जो खामियां हैं पूरे साल के अंदर दाखिल हो गई हैं, हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। हर इंसान के अंदर सुस्ती आती है, बाज़ औक़ात इंसान नमाजों में बड़ा पंक्चुअल टाइम पे और बाज़ औक़ात उस पर सुस्ती आ जाती है, वो इस तरह का दायरा होने के करीब पहुंच जाता है कि जैसे वो ये ऊंच नीच हदीस के मुताबिक हर मुसलमान में, हर मोमिन में होती है। लेकिन ये जो जलसे के मौके होते हैं, अगर इनको बंदा जाया कर दे उससे फायदा ही ना उठाए। अब देखें ना, हज है हर मुसलमान पे फर्ज है, लेकिन हमारे ऊपर जमाने के वो बदबख्त लोग जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक करार दिया, उनकी वजह से या उन लीडरों की वजह से जो अपनी कुर्सी लंबी करते करते अपनी गर्दन लंबी करवा बैठे, या कोई अपनी कुर्सी को तूल देते देते अल्लाह ताला की गजब का निशान बन गया। बात सिर्फ इतनी सी है कि जमात अहमदिया को हज करने की ओपनली अजासनामा या कोई वो नहीं है, जिसकी वजह से हमें वो मौका मुयस्सर नहीं आता कि हम वहाँ आराम से। लेकिन ये जो जलसे हैं, जलसा भी वक़्त के इमाम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जारी किया और उसकी गर्ज़ व गाइस भी बताई। तो अगर हम वहाँ पहुँच के भी फ़ायदा नहीं उठाते, जाते हैं जलसे पे अपना मौज मेला जिमें दुनिया में उड़लाओ या हॉलीडेज मनाने के लिए 3 दिन होटल में रुके, सुबह मर्जी से उठे, जलसा गा गए, खाना पीना खाया, 2-4 तकारीर जो जिन पे निशान लगाए हुए हैं वो सुने, बाकी लोगों को मिले, एग्जीबिशन देखी, फिर बाजार के मजे लिए, तरह तरह का खाना खाया। और जिस तरह हम गए थे
जलसे पे वैसे के वैसे ही वापस आ गए। जिंदगी में कोई तब्दीली पैदा ना हुई, कोई किसी किस्म की नमाज की जो सुस्तियाँ वो दूर ना हुई, जो ताल्लुकात थे वो बेहतर ना हुए, लोगों का जो ख्याल इंसानियत का उसमें कोई ताल्लुक नजर ना आई कि आपके अंदर कोई तब्दीली है, तो फिर उस जलसे में शामिल होने का मेरे ख्याल में तो कोई आपको फायदा ना हुआ। बस इतनी सी बात है कि हम जलसे में जो शामिल होना है, हमने क्या मकसद, क्या गर्ज लेके जा रहे हैं। क्या हमने जाके वहाँ सिर्फ कपड़े दिखाने हैं, तरह तरह के खाने खाने हैं, लोगों को मिलना है, चेहरा दिखाना है, बताना है कि हमारे पास अब ये फलानी गाड़ी आ गई है। पहले हमारा हालात कमज़ोर थे, अब हमने मर्सिडीज नहीं ले ली है या हमने पोर्शे ले ली है, और आजकल हम फलां मार्के के कपड़े पहन रहे हैं, हमारे हाथ में फलां कंपनी का बैग है। पाकिस्तान में जैसे वो घड़ी चोर को वो नाम इल्ज़ाम लगा के तो वो इधर वो घड़ी दिखा ली या ये कर लिया, ये चीज़ें जो हैं ये जलसे की रूह में शामिल नहीं है। बात ये है, इस वक्त तो मैं एक सफ़र जो हमारा टाउनस की तरफ है वो साथ साथ आप नज़ारे देख रहे हैं मोटरवे के, शहर के अंदर से कैसे निकलते हैं, लेकिन मकसद जो है वो ये चल रहा है साथ कि जलसा सालाना जर्मनी जो होना है 10 दिन बाद, उसको ज़हन में रखें। बाकी भी जो जलसे दुनिया में होते हैं, आया मकसद हमारा पॉजिटिव है, हमने अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लानी है, ये इरादा हम पूरा साल कर रहे हैं, या हम सिर्फ यही सोच रहे हैं कि हमने 3 दिन होटल में हॉलीडेज मनानी है, वहाँ लोगों को मिलना है बस। और जैसे मैंने बताया बाकी जो कपड़े कुपड़े दिखा दिए, गाड़ियाँ दिखा ली, मेल मिलाप, हंसा मजाक, खानी पाना, और बस अगर इस तरह के ही जलसे पे जाना तो फिर तो मेरा ख्याल है वो मकसद जो है जलसे का अगर वो फौत हो जाता है। तो अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे कि हम जलसे पे जब शामिल हों तो वो जो असल गर्ज है रूहानी तरक्की, और वो जो जितनी तकारीर इतनी मेहनत के साथ जो बुजुर्गान मुरब्बियान करते हैं उनको बैठ के सुने। जब कान में कोई चीज़ पड़ती है तो उसका असर जो है वो कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, लेकिन अगर आप अपने कान ही बंद कर लें या आप ये सिलेक्ट कर लें कि फलां फलां तकरीर तो वैसे हो तो नॉर्मल, उसमें तो कुछ होता नहीं है, तो फिर आपने कोई ना फ़ायदा होना है ना वो बरकत जिसका जिक्र हज़रत मसीह मौऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, जलसे में शामिल होने वालों के लिए खुलफा ने किया है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम जलसे की जो असल रूह है उसको पहचान सकें। और जो मैंने 1-2 दिन पहले वीडियो अपलोड की थी, सारा उसमें बताया हुआ है कि जलसे में कैसे पहुंचना है, क्या क्या सहूलियात हैं, कैसे इंसान जो है जो जिस तरह जाना चाह रहा है, ये देख लें कि वो जो वहाँ स्टुटगार्ट से ट्रेन जो U6 ने लेके आया, उसकी कोई बाउस्टेल या वर्क की वजह से वहाँ एक जगह उतर के बस पे फिर आगे चढ़ना, इसके साथ टाइम सारा जेन में रख ले। अगर जलसे पे टाइम पे पहुँचना है, गाड़ियों वालों का तो हो जाना रश, लेकिन जो इधर उधर जो गांव हैं छोटे छोटे, वहाँ गाड़ी अगर आप पार करके करीब तो ट्रेन लेके आसमान यू लेके तो वो आप जल्दी पहुँच जाएंगे गाड़ी पार्किंग में ला के पार करने से के बजाय। चलें, काफ़ी हो गया मेरा ख्याल आज के लिए, इंशाअल्लाह ताला बाकी फिर अगली वीडियो में रोज़ाना ये जलसे के मुतल्लक जो भी छोटी मोटी गुफ्तगू जो मेरा मौक़िफ़ है, जो मेरा ख्याल है, वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। अगर दोस्तों को कोई चीज़ बुरी लगी हो तो ज़रूर अपने कमेंट्स में इसका इज़हार करें, और अगर आप समझते हैं कि जो बातें मैंने की हैं वाकई ऐसा ही है तो फिर उसके ऊपर भी कमेंट्स दें, और ये कोशिश करें अपने गिरदोनवा में जितने लोगों को आप जानते हैं, जर्मन है, अरबी है, उनको जलसे के जो तैयार की गई है इन्विटेशन वो ज़रूर पहुंचाएं, और उनको पर्सनली कहें कि ये जलसा कोई आम जलसा आप लोगों को जो यहाँ होते हैं उस तरह का नहीं है, बल्कि लाइफ चेंजिंग जलसा है। अगर इंसान ने अपनी जो है आकबत संवारनी है तो उसके लिए इस जलसे को देखे, और जो मल्टी कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, जो इस्लाम की तालीम है, मोहब्बत भरी तालीम, अमन का जो पैगाम है, वो आके इस जलसे पे देखें, ना कि ये जो मीडिया पे आप देखते हैं सोशल मीडिया पे फलां मुल्क में ये हो गया, फलां ने ये कर दिया, उसको ना ध्यान में रखें। अगर सही इस्लाम की तस्वीर देखनी है, उसकी तालीम का सुनना है तो फिर यहाँ पे आए और लोगों को लेके आए साथ। अगर किसी को प्रॉब्लम है गाड़ी की या ट्रेन की, जमात से रब्ता करें, आपके लिए वो भी अरेंज कर दिया जाएगा। इतनी बड़ी जगह है, वहाँ जितने ज़्यादा मेहमान आएंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर है तबलीग इस्लाम के लिए,
قرآن کی دنیا میں متعارف ہونے کے لیے اور حقیقی اسلام کا پیغام پہنچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں جلسے کی جو برکات ہے اسے استفادہ کرنے کی توفیق دے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم، یہ میرا ایگزٹ آ گیا۔